चलो. Good evening, all of you. So let us start with the next part in this chapter, that is about the magnetic field due to an electric current. तो इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ देखा था कि उसमें हमने देखा था कि किस तरह से किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. तो वो हमने देखा था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में. तो अभी आज के लेक्चर, और इवन ये भी हमने देखा था कि कोई भी जो सर्कुलर कॉइल होता है तो उसका जो एक छोटा आर्क जो होता है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा, तो उस थीटा एंगल सबटेंड करने वाले आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है वो कैसे निकालने का, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बनाया था ऑलरेडी. सो कुछ इस प्रकार हमने ये किया था. यू माइट बी सीइंग द बोर्ड. सो देखो ठीक से, तो उसमें हमने देखा कि अगर सपोज एक सर्कुलर कॉइल है, यस, if we have the circular coil like this, and we want to find out the magnetic induction produced at its center, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो अगर हमको ढूंढना है, सपोज ये उसका सेंटर है और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो इस कॉइल को हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया था और हमने उसमें से एक एलिमेंट कंसिडर किया था. सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ जो है वो dl के बराबर होगा, dl, और वो एलिमेंट जो है वो इस a पॉइंट पे है, ऐसा अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर इस a एलिमेंट की वजह से, मतलब dl लेंथ वाले एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो हम देखते हैं, इस पॉइंट ओरिजिन या सेंटर जो होता है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो अगर हमको ढूंढना है, इसको हम सी नाम देके रख देंगे. तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके ऊपर बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई किया, राइट. सो यूजिंग द बायोट-सावर्ट्स लॉ वी कैन गेट द small fractional part of magnetic induction dB produced at the center C due to this whole due to this element at point dl or element at point A here will be given by the mu naught upon 4 pi into I into dl into sine theta, and that is to be divided by r square, where r is going to be the radius of this coil also and the distance of this point C from A also, no doubt. But at this time here we can see that this angle theta between this radius and tangent clearly is going to be 90, and it will happen always. And since theta is going to be 90, we can say that sine theta has to be always equal to 1, and hence we can say that this dB reduces into mu naught upon 4 pi into I into dl, and that is to be divided by r square, correct. And then we will have to integrate this, just because in order to find out the total magnetic induction at this point C due to the whole coil, so which is to be obtained by integrating this whole equation for dB. तो इस dB को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा, देखो, mu naught upon 4 pi into I into dl upon r square. इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें से जो कॉन्स्टेंट्स है वो सारे बाहर चले जाएंगे और हमको अंदर में बचेगा सिंपली dl. तो देखो ठीक से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर चला गया और I अपॉन r स्क्वायर भी बाहर चला गया, और अंदर में जो बचा तो वो सिंपली dl है, राइट. एंड dl, when we integrate this dl, it is the length of a small element here. But if we go on adding the lengths of all such small elements, then we are going to get the circumference of this circle, and hence we can in the next step replace it by that. So B actually happens to be simply mu naught upon 4 pi into I upon r square into integration of dl, which is going to be actually 2 pi r, where r is going to be the radius, so that we can cancel this r once,
and even 2 pi can be cancelled with this 4 pi, and 2 is left behind, and r also 1 cancelled, 1 left as it is, so that we can reduce this into b is equal to mu naught into I upon 2r. This is actually going to be the magnetic induction due to a circular current carrying coil, we can say. ओके, अभी हम एक देखेंगे कि इसका ही एक करोलरी जो है, इसका ही एक एप्लीकेशन पार्ट हमने एक देखा था ऑलरेडी, तो जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का एक छोटा पार्ट जो होता है, अगर मान लो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है बट इट इज नॉट फुल वन, तो उसका जो पूरा जो पार्ट है वो पूरा पार्ट हमारे पास नहीं है, बल्कि सपोज इधर से ओके ओके okay, so yes, let us see, if we have a small part of the circle. ओके, ये हमारा स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर, yes, and suppose that ओके, तो ये समझो एक छोटा पार्ट है सर्कल का, जिसका एक छोटा पार्ट हमने कंसिडर किया है, और उसमें से करंट सपोज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, चलो सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई जितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, और ये सपोज एक थीटा इतना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे सपोज, ठीक है, ये ऐसे, तो ये अगर ऐसा है तो इस केस में फिर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा इस थीटा एंगल सबटेंड करने वाले आर्क की वजह से एट द सेंटर सी हियर। तो उसके लिए क्या करना है हमको, देखो फिर से एक बार हमको इस पूरे सर्कल को, मतलब इस सर्कल को हमको डिवाइड करना है छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, एंड we'll have to consider one such element, suppose this is the element here which is of length dl, ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे जो कि पॉइंट ए पे रहेगा सपोज, और उसका जो लेंथ है वो हम मान लेंगे dl है सपोज, ठीक है। तो अभी इस dl लेंथ वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए, जो बायोट-सावर्ट्स लॉ, दैट इज dB इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I into dl upon r square. Ideal into sine theta also, and that is to be divided by r square, no doubt. But as we know that this theta is going to be the angle between this element and the radius which we can join here. तो ये जो radius हम इसको join करेंगे इसके साथ, ये जो है ये इन दोनों के बीच में एंगल वो बनता है जो कि एक्चुअली कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है, एज इट इन दिस केस। यहाँ पे जैसा होता है सेम वैसा यहाँ पे भी होगा वो, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, जिसके कारण यहाँ पे थीटा 90 होने के कारण नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into here it is I into dl upon r square, because theta becomes 90 and hence we can say that sine 90 becomes actually 1, right? And then we can just integrate this also so as to get the total magnetic induction at this point C due to this whole circular arc here. So integration of dB, which will be calculated as integration of mu naught upon 4 pi into I into dl upon r square. Okay, but as we know that this mu naught upon 4 pi and I upon r square all are the constants already, and that's why they can be taken out. Okay, so mu naught upon 4 pi गया बाहर, I upon r square भी बाहर गया, और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ dl बचेगा अंदर, देखो dl. Okay, so that if we are left with this dl only, तो okay, तो यहाँ पे फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो ठीक से। सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डीएल मतलब क्या है, एक एलिमेंट का लेंथ है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एलिमेंट बनता है उसका लेंथ यहाँ पे डीएल है। अगर हमने यहाँ से यहाँ पे ऐसे सारे एलिमेंट्स जो है उनका लेंथ अगर ऐड करते चले गए तो क्या मिलेगा, इस पूरे आर्क का लेंथ मिल जाएगा, करेक्ट है, जिसको हम सपोज एल बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I upon r square into integration of dl, which is going to be simply L. But as we know here that this L arc length, ये तुमको पता होगा ऑलरेडी कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है कि नहीं। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा एंगल विच इज थीटा is going to be equal to the arc length which is L divided by the radius which is R here. So if we if we rearrange this slightly, then we can get this in the form L is equal to R theta, and then we can just replace this here and just get it at as B is equal to mu naught upon 4 pi into, here it is I upon R square into एल के बदले क्या आने वाला है, यहाँ पे आर इंटू थीटा ये हम रखने वाले हैं, जिससे ये आर जो है वो देखो कैंसिल हो जाएगा एक बार, और बचेगा क्या, सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो नेक्स्ट स्टेप। सो इट विल बी एक्चुअली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इन आई थीटा अपॉन आर, करेक्ट है, आई थीटा अपॉन आर, दैट्स इट। if you just compare this with this formula here, इस फॉर्मूला के साथ अगर इसको हम कंपेयर करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, देखो कि b कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू, अच्छा अभी म्यू नॉट आई अपॉन 2r है ना यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई ऑलरेडी है यहाँ पे, और 2r अगर बाजू में निकाल दो तो 2 पाई बचता है इधर नीचे, तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 2 पाई इंटू ब्रैकेट में आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, विच इज द रिजल्ट we have derived last time yesterday. तो कल के लेक्चर में हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो यही है, तो जिसमें हमने देखा था लॉजिकली ये हमने डिराइव किया था एक्चुअली कल, तो बट इसमें याद रखो ठीक से कि थीटा शुड बी इन रेडियन, देन इन रेडियन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। हेलो, हाँ सर।
ओके, तो देखो ठीक से, और यहाँ पे ये बताया था कि द एंगल थीटा शुड बी इन रेडियन कंपल्सरी. इफ इट इज नॉट, then we have to replace or modify this formula slightly and say that it will be theta upon 360 into mu naught I upon 2r. बिल्कुल, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमको यूज करना है अगर थीटा डिग्री में है तो. ओके, so this is going to be actually the simple form which we have done last time. Okay, if you want you can take the screenshot of this once again. There are two derivations actually, ये दो derivations है हमारे पास. इसमें से फर्स्ट वाला जो है इट इज द डेरिवेशन फॉर सर्कुलर कॉइल. इवन ये देखो यहाँ पे एक बात है कि ये सर्कुलर कॉइल का जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे थीटा के बदले 2 पाई डाल के भी निकाल सकते हैं. पता है कैसे? देखो ठीक से, थीटा के बदले अगर हमने 2 पाई डाल दिया सपोज, तो क्या बनेगा बताओ? इस थीटा के बदले अगर हमने 2 पाई डाल दिया तो बिल्कुल हमको ये मिलेगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यही फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल. सो इसीलिए हम देख सकते हैं और आराम से कि इफ वी कीप थीटा इक्वल टू 2 पाई, और इन दिस फॉर्मूला, ये जो अभी ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये वाला जो है, तो इसके अंदर भी अगर हमने थीटा के बदले अगर 360 डाल दिया तो बिल्कुल हमको सीधी बात है कि यहाँ पे 360 कैंसिल हो जाएगा और हमको फुल कॉइल का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो वो मिल जाएगा. बिल्कुल. ओके, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी अभी यहाँ पे. यस, एनीबॉडी? नो डाउट? Okay, so let us go to the next derivation in this chapter, that is about see here, it is the magnetic induction at a point along axis of a circular current carrying coil. Okay, this is the heading. देखो ठीक से, magnetic induction at a point along the axis of a circular current carrying coil. Okay, so let us consider a circular current carrying coil. ठीक है, which lies in a xy plane. देखो ठीक से, अभी यहाँ पे ये xy प्लेन में ये सर्कुलर कॉइल लाई करता है ऐसे सपोज. ठीक है, और अभी take the x axis and y axis and z axis. So suppose that the x axis is going to be there in this direction. ये सपोज हमारा x axis है, ये समझो y axis है, ये देखो, और फिर ये सपोज z axis है. Yes, this is going to be the z axis. Okay, so and the point of intersection of all these three is going to be the origin. Okay, and now see here, let us take this as a x-axis, this is going to be the y-axis, and this will be the z-axis. Okay, and अभी इस कॉइल के अंदर जो है I इतना करंट फ्लो हो रहा है. जस्ट इमेजिन I करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल. ओके, तो यहाँ पे हम उसको दिखा देंगे. यहाँ पे दिस इज द करंट I विच इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इस डायरेक्शन में इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है. चलो ठीक है, अभी जहां पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है वो पॉइंट ये रहा. देखो यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट P हियर वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी फाउंड आउट. Okay, so in order to find out the magnetic induction at this point P here, again once again we will have to divide this coil to be made up of large number of elements, small elements, each of length dl.
and find out the magnetic induction at this point here due to one such element, and the integrate that equation over the whole coil. तो पूरे कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे पैदा होता है वो हमको निकालना होगा। और उसके लिए जो R बन के काम करेगा, तो R will be the distance between this element at point A here and the point P here। ये देखो, इस A को अगर हम P के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये बनेगा हमारा R। समझा ठीक से? This is actually going to be R। R मतलब the distance between the center of element and the point P where the magnetic induction is to be found out। Okay, so let us show this element to be by red color। ये देखो, ये रेड कलर से ये एलिमेंट हम शो कर रहे हैं। देखो ठीक से, ये एलिमेंट है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना होने वाला है, डीएल रहने वाला है। ठीक है, अभी इस डीएल लेंथ वाले एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे पैदा होता है, तो वो कैसे हमको मिलेगा। तो देखो, ये इसका लेंथ सपोज डीएल है, इस पॉइंट को हमने सपोज ए बोल दिया जहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। ओके, तो अभी देखो ठीक से, अगर हमने राइट हैंड रूल यूज किया यहाँ पे, देखो ठीक से अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट ए पे जो करंट का डायरेक्शन है वो कौन सा रहेगा, जरूर अंदर की तरफ रहेगा, राइट, इनवर्ड्स। सो व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड्स into the plane of the figure, and if you want to find out the magnetic induction at this point here, what will be the direction of magnetic induction at this point? So using the right hand rule, if we say right hand rule अगर यूज करेंगे तो हमारा थंब जो है, वो थंब हम क्या करेंगे, इस करंट के डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, ताकि, और फिंगर्स जो है वो फिंगर्स इस तरफ हम टर्न करेंगे, जिससे हमको करंट का डायरेक्शन मिल जाए। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। So if we use the right hand rule here at the point P here, then we can get the magnetic induction at point P produced due to this element at A will be like this। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा। देखो ठीक से, ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, समझा कि ठीक से, दिस डायरेक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ। ये डायरेक्शन जो है वो दोनों को परपेंडिकुलर है। कौन दोनों, समझा ठीक से, एक तो एलिमेंट और दूसरा ये जो आर है, आर को भी और एलिमेंट को भी परपेंडिकुलर, क्योंकि एलिमेंट इनवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर इज द करंट फ्लोइंग हियर, एंड इन ऑर्डर टू बी परपेंडिकुलर और राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो हमको एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा यहाँ पे, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, बिल्कुल। तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो, ये हमको मिल गया, चलो ठीक है। once we get that direction of the magnetic induction at point P, so we can just resolve this into two components now। इसको हमको अभी दो components में resolve करना है, उसके लिए हमको एंगल चाहिए। so let us take this angle as theta, चलेगा, इस एंगल को हम थीटा बोल देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या है ना कि ये जो है इसका एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, ऐसे हम रिजोल्व कर सकते हैं उसको। तो अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो उस मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, वो हम निकाल सकते हैं आराम से बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट्स लॉ। व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ? द magnitude of magnetic induction at the point P at a distance r due to the current element of length dl carrying the current I will be mu naught upon 4 pi into I into dl into sin theta अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये तो चलो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास, नो डाउट। बट अभी क्या है ना कि ओके, dB will be actually equal to mu naught upon 4 pi into I into dl into sin theta अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। चलो ठीक है, बट यहाँ पे फिर से हम एक बार देख रहे हैं कि द एलिमेंट इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स एंड आर इज गोइंग टू बी इन दिस प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसलिए
डीएल बार और आर बार के बीच में एंगल कैसा है? देखो आर डीएल इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स एंड दिस आर बार इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दैट। तो ये जो एंगल है यहाँ पे 90 बन रहा है और इसकी वजह से हम देख सकते हैं आराम से कि जरूर जो एलिमेंट इस तरह से होने के कारण यस ओके सो बेसिकली तो यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री होने की वजह से फिर से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री and hence sin theta will actually be equal to 1 so that this whole formula gets reduced into, so dB can be written to be equal to mu naught upon 4 pi into I dl upon r square। ओके तो देखो यहाँ पे ये हमको मिल गया। अभी आप में से कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे एंगल किधर हमको 90 डिग्री दिख रहा है, बट इमेजिन करो 3 डायमेंशन में, इमेजिन करो कि ये जो लूप है ये लूप एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में है, बराबर, एक्स वाई प्लेन में, और इसलिए उसके अंदर का जो हर एक लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। और ये जो है ये जो एलिमेंट है डीएल लेंथ का, तो वो अंदर की तरफ है और उसको ये आर जो है वो जरूर परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए हमको वो एंगल जो है वो 90 डिग्री मिलेगा। बिल्कुल। अभी ये जो एंगल है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं वो अलग है यहाँ पे। ये देखो इसको अगर हम बोलते हैं सपोज थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा जरूर। क्यों? उसका रीजन क्या है देखो ठीक से। बट दिस थीटा इज नॉट दिस थीटा, ये बात याद रखो ठीक से। ये थीटा अलग है, ठीक है। ये थीटा तो चलो 90 हो गया, इसलिए उसका साइन थीटा जो है वो हमने 91 डाल दिया, नो डाउट, बट दैट इज अ डिफरेंट थीटा। बट दिस थीटा इज अ डिफरेंट एंगल एक्चुअली, वी हैव टेकन इट फॉर रेफरेंस हियर ओनली। अब देखो ये थीटा क्यों है, ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम क्यों है? क्योंकि देखो सीधी बात ये है कि ये जो ओपी है, ओपी उसको हम बोलेंगे, ओ से लेके पी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस ओपी को परपेंडिकुलर है ओ ए, करेक्ट है। और ये जो आर बार है आर, ये पी पी ए उसको हम बोल सकते हैं, पी ए उसको परपेंडिकुलर है ये, जिसका डायरेक्शन हमने निकाला यहाँ पे डीबी बार। ओके डीबी बार जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो डीबी बार इज परपेंडिकुलर टू this r bar and this OA बार इज परपेंडिकुलर टू OP बार। तो इसलिए ये दोनों के बीच में का जो एंगल रहेगा, ये OA और AP इनके बीच में जो एंगल रहेगा, वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो रहेगा कि नहीं? जरूर। इसलिए ये एंगल जो है वो थीटा बन गया। अगर ये अभी एंगल थीटा है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में अभी रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो सो इफ वी रिजॉल्व इट इन टू कंपोनेंट्स देन वी कैन गेट, तो ये जो एक कंपोनेंट जो उसका है वो ऐसा हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में, ये देखो। और दूसरा कंपोनेंट जो उसका है तो वो हमको मिलेगा, कलर चेंज करेंगे, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमको इस तरफ मिलेगा, देखो ऐसा, समझा ठीक से। दिस इज गोइंग टू बी अनदर कंपोनेंट हियर। सो these आर द टू components ऑफ ए बी बार, सॉरी डी बी बार। एंड जो थीटा का एडजेसेंट है तो उसको हमको क्या बोलना होगा? जरूर db cos थीटा बोलना होगा। सो ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोल देंगे db cos थीटा। ओके। और दूसरा और जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये बन जाएगा db इंटू साइन थीटा। ओके अभी देखो ठीक से, तो इसमें से db साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है तो वो इस तरफ है। अगर हमने इस एलिमेंट का जो db साइन थीटा वाला कंपोनेंट देखा तो वो इस तरफ आएगा, जो कि इसको कंपल्सरी पैरेलल मींस अपोजिट होगा, इक्वल बट अपोजिट होगा। और इक्वल अपोजिट होने के कारण उसको हम आराम से निग्लेक्ट कर सकते हैं
और बोल सकते हैं कि दैट कंपोनेंट विल जस्ट गेट कैंसल्ड एंड ओनली dB cos थीटा कंपोनेंट जो है वो सिर्फ यहाँ पे ऐड होगा। और इसीलिए यहाँ पे जो टोटल हमको जो मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट P हियर, इट विल बी obtained by integrating this dB cos alphas at every due to every point। तो और dB cos थीटा, तो ये dB cos थीटा जो है वो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dB cos थीटा, क्योंकि ये जो dB cos थीटा का जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में है। बाकी जो सारे कंपोनेंट्स रहेंगे ना वो कोई इस तरफ कोई इस तरफ कोई अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखो ये A पॉइंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो B पॉइंट रहेगा उसका भी तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा, ये C पॉइंट यहाँ पे रहेगा उसका भी तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा। इफ यू कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस coil at this point P here, then the perpendicular components of all these elements will just get cancelled when we consider the overall contribution, but only this cos theta components जो है ये dB cos theta वाला जो component है वो सिर्फ यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा और उसकी वजह से हमको जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे मिलेगा तो वो इंटीग्रेशन ऑफ dB cos theta के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर हम ये डाल देंगे dB का वैल्यू जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I into dl upon r square, and that is to be multiplied with cos theta also. See here, this is cos theta multiplied here. Okay, but cos theta जो है वो cos theta हम यहाँ से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके सामने कोई साइड नहीं है, बट ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा, देखो APO, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने cos theta का वैल्यू यूज किया तो हमको इसमें से इस ट्रायंगल का cos theta का जो डेफिनेशन है तो वो यूज करके हमको cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। इन द ट्रायंगल OAP, व्हाट कैन वी से, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? सो अभी इस थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है, ये OA है जिसको हमने R बोल के रखा है। सपोज कैपिटल R हम बोल देंगे उसको क्योंकि स्मॉल r तो ऑलरेडी ये है ना, ये डिस्टेंस को हमने स्मॉल r बोल के रखा है, तो वी कैन नॉट कॉल दिस रेडियस ऑफ कॉइल एज स्मॉल r, but we should take it as capital R. Okay, so here this adjacent side capital R upon this OA hypotenuse that is small r will be the value of cos theta here. So you can get that this capital R upon small r as the value of cos theta. If we replace it here, then we can get the magnetic induction due to the whole coil to be simply equal to mu naught upon 4 pi into what is this I into dl अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है, आने वाला है, एंड आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा के बदले क्या आएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आएगा, बिल्कुल। जो कि अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बनेगा। सो अभी इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स है तो वो बाहर ले लेंगे और सिर्फ जो वेरिएबल्स है तो उनको अंदर रखेंगे। वेरिएबल कौन है, सिर्फ डीएल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है। चेक करो एक बार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही कॉन्स्टेंट, it can be taken out, no doubt, and at the same time देखो ठीक से यहाँ पे I upon r क्यूब is also constant, क्योंकि ये जो r है ये r सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस है, सभी अलग अलग पॉइंट्स का जो हम डिस्टेंस अगर निकालते जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। इमेजिन करो उसको ठीक से, कोई भी कोन जो होता है आइसक्रीम कोन, तो उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो है वो वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है कि नहीं, यही बात यहाँ पे लागू होती है। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोन के जैसे हर एक कोन के ऊपर के सरकमफ्रेंस के ऊपर का कोई भी पॉइंट उसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हुआ करता है, तो उसी वजह से यहाँ पे r विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स इन ऑन दिस सर्कल और कॉइल, एंड हेंस वी कैन टेक दिस I कांस्टेंट आउट, एंड इवन कैपिटल R जो है वो तो रेडियस है कॉइल का, वो तो है ही कांस्टेंट ऑलरेडी, सो कैपिटल R कैन आल्सो बी टेकन आउट बिकॉज इट्स कांस्टेंट, एंड डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे ये आर स्क्वायर और आर दोनों मिलके क्या बनता है, आर क्यूब बन जाता है। देखो यहाँ पे ये बन गया तुम्हारा आर क्यूब, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचता है, फिर सिर्फ डीएल बचता है यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब ही क्या, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, क्योंकि एलिमेंट का एक एलिमेंट का जो लेंथ है वो अगर हम ऐसे हर एक एलिमेंट का लेंथ अगर ऐड करते चले जाएं
तो हमको सारे एलिमेंट्स के लेंथ का जो एडिशन है वो मिलेगा circumference of the coil. But don't forget that the radius of coil is capital R. So we have to keep it as capital R, 2 pi capital R. That is the circumference of the coil. This is going to be the integration of dl. Okay. So ये हमने देखा, ठीक है। वो अगर हमने रिप्लेस कर दिया इधर तो हमको क्या मिलेगा? Magnetic induction at point P due to this coil B is equal to mu naught upon 4 pi into I into capital R upon R cube. Okay, and that is to be multiplied with integration of dl, which is going to be 2 pi capital R. Yes, and then we'll be able to cancel out this 2 pi from both sides here. So अगर हमने ये 2 pi जो है वो अगर इधर से कैंसिल कर दिया, ये देखो ये 2 pi और ये 4 pi गया, तो बाकी क्या बचेगा फिर? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे it will be B is equal to mu naught I R square, sorry 2 I R square, correct है? So here it will be mu naught into 2 into I capital R square upon, नहीं 2 कहाँ से आया? 2 तो नीचे आने वाला है ना, सॉरी। हेलो, ओके। सो ये कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया और हमको क्या मिलेगा? सिंपली B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में मिलेगा म्यू नॉट I into R square only, and that is to be divided by simply 2 times of small r cube. Okay, but as we know that this here is the Pythagoras theorem जो है, तो Pythagoras theorem से अगर हम देखेंगे ठीक से, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हमने z मान लिया, ठीक है, this distance is going to be actually z, which is the z coordinate of this point P here. Then we can be able to express this small r square in terms of z square and r square. Check. Using Pythagoras theorem in the triangle OAP, we can say that r square is actually going to be equal to z square plus r square, capital R square, correct है? तो इसको यूज करके हम अगर निकालेंगे ठीक से, तो स्मॉल r कितना आएगा? ओनली स्मॉल r कितना आएगा देखो ठीक से। सो स्मॉल r कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस z स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। सो r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बन गया। अभी रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू 1/2 होता है, बराबर। तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, हियर इट इज गोइंग टू बी कैपिटल R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर and the whole raised to 1/2. Okay, but here we want to find out r cube. ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर r cube चाहिए ना हमको, तो इसमें दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो क्या होगा? सो इसमें से देखो, तो इसको r क्यूब जो हमको मिलेगा तो वो रहेगा एक्चुअली r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर द होल रेज टू, कितना आएगा यहाँ पे? r square plus z square raised to half the whole cube. So that means half into 3, which is actually going to be 3/2 here. So it will be in this way 3/2 as a final. So r cube का value हमको मिल गया. Just replace it here and get it as b is equal to mu naught into I into capital R square the whole divided by 2 times of bracket में r square plus z square the whole raised to 3/2. So this is going to be actually the formula for finding the magnetic induction at any point along the axis of a circular current carrying coil. Remember, the r is going to be the radius of this coil, z is going to be the distance of that point where the magnetic induction is to be found out from the center of the coil. Okay,
and this small r is going to be the distance of that element from the circumference of the coil, which is not appearing in the final result actually. तो इस final result के अंदर वो small r नहीं है. We have expressed this final result in terms of capital R here and Z obviously. So ये हमने इस तरह से निकाला. You can just verify this equation by putting Z equal to 0. Check. If you put Z equal to 0, then we should get the previous equation. तो देखो यहाँ पे z इक्वल टू 0 अगर डाल देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, r स्क्वायर रेस टू 3/2 बनेगा. तो और r स्क्वायर का 3/2 पावर कितना होता है, 2 to कैंसिल, r क्यूब बनेगा डायरेक्ट. एंड वी कैन से दैट दिस b विल एक्चुअली बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I into r square upon 2 into r cube, correct है. So here it will be 2 into r cube, and if we cancel out r once here, then we can finally get this formula to be modified as mu naught into I upon ये r square cancel हो गया और बचेगा 2 into capital R, which is the same formula which we have just got in the last screen if you remember. ये देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमको मिला था कि नहीं इधर ये वाला, तो यही फॉर्मूला हमको मिल रहा है यहाँ पे फिर से एक बार देखो ठीक से, यही फॉर्मूला है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r. Okay, so the same formula we get this here by putting this z is equal to 0 here, because when we will put z equal to 0 here, then automatically we reach at the origin, right. अगर हमने z equal to 0 डाल दिया तो ये z का वैल्यू अगर 0 हो गया तो पॉइंट p कहाँ पे चला जाएगा, origin पे चला जाएगा obviously, and hence we can get the equation for the expression for the magnetic induction at the center of the coil to be same as mu naught I upon 2r, which is already we have found it out. Okay, so just take the screenshot of this screen also so that we can stop this lecture here. Okay, so let us stop. Thank you all of you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye.